जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही आईआईटी बॉम्बे ने गेट 2021 की डेट्स को अनाउंस कर दिया है। वो डेट्स हैं कि 5 और 7 फरवरी एंड 12 और 13 फरवरी 2021 को यह गेट का एग्ज़ाम आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराएगा अलॉन्ग विद सम अदर आईआईटीज़। इस बार की न्यूज़ ये है कि 2 न्यू सब्जेक्ट्स लाइक द इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं, जिसको मिला के टोटल गेट में अब 27 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन द करेंट सिनेरियो, लाइक आवर कंट्री और जो पूरा वर्ल्ड जो है इस समय कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। या उसके अलावा भी बहुत सारे देर आर सम अदर फैक्टर्स लाइक द इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियल सेटअप, या जो कुछ भी है उसके रिक्वायरमेंट, या फिर वेस्ट प्रोडक्शन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, सब चीज़ में इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द PSUs in our country like BPCL, ONGC, IOCL, Coal India Limited, Steel Authority of India Limited, all these PSUs recruit the environmental engineers, or they will take their needs by the civil engineering as the environmental engineers. But from this years the GATE exam is specifically for the environmental science and engineering subject, is specifically included in a GATE exam. So what should be the course structure, what should be the syllabus, what will be the syllabus, and other things will be in a GATE exam. So I am predicting and proposing some things like the syllabus and a course structure of GATE 2021. So my name is Rishabh Singh. I have completed my MTech from IIT Dhanbad, Indian School of Mines, and currently placed in a Steel Authority of India Limited as a management trainee environment. So this is my YouTube channel, Environment Master, sorry. So what is the exam pattern of GATE? So as we know, the GATE means the Graduate Aptitude Test Exam. So it takes nearly 180 minutes or 3 hours. Total number of questions in this exam is 65 questions. In these 65 questions, 10 questions are specifically for the aptitude section. In that aptitude section, there will be a quantitative aptitude along with the English subject. And one more thing, in this exam, or these 65 questions have been divided in a certain portions. Like 35 questions will be the 35 questions will be of 2 marks almost, and nearly 30 questions will be in the 1 marks questions. So aptitude questions जो रहेंगे, that is the 5 question for 1 mark each and a 5 question for the 2 mark each. Along with these two mixes the 15 marks. And both the questions are not, all the questions are not only the MCQs but also the numerical aptitude test, aptitude type या NAT बोलते हैं उसको. उसमें क्या रहता है कि वी हैव टू पुट द वैल्यू और द आंसर इन द सर्टेन स्पेस वेयर वी हैव टू पुट द रिजल्ट और द आंसर की there will be a certain limit from up to certain decimal places. So we have to very procure about that कि जो रिजल्ट पुट करें या जो भी आंसर आए पुट करें वो that will be the very accurate. Otherwise if that will not be within the permissible limit provided by the GATE authority, then that will be rejected or counted as a 0 marks. Okay, बट देयर इज़ वन थिंग, इन अ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है. उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी हैव द निगेटिव मार्क्स. MCQs विल बी हैव द निगेटिव मार्क्स ऑफ 1/3 ऑफ द marks getting weightage for that question. Like if the question will be for the 1 mark, then there will be a 1/3, 1/3 marks negative, and if it will be a 2 marks question, then the 2/3 marks will be in a negative form. Okay. So here is some marks distribution that I am proposing, like as per my knowledge, as I have also cleared the GATE 3 times and completed the MTech in environmental science and engineering. So I am proposing about the what should be the classification of marks distribution for the GATE exam. So I will help you guys to prepare this GATE 2021 exam. So इसको हम लोग इस पे हम लोग बात को आते हैं.
At first we will talk about the what is the different portions of subject like the mathematical foundation, environmental chemistry, environmental microbiology, water resource and environmental hydraulics and management, and water and wastewater treatment, air and noise pollution, solid waste management, global and regional environmental issues, and environmental management and sustainability. So these are the some portions in this exam. So here is the course structure for that. So at first, like like other exams, this exam this portion of subject is also included the mathematical foundation या mathematics foundation. So in this there will be some sets like the linear algebra, जिसमें हम लोग determinant and matrices, system of linear equations, eigen values, eigen vectors, all these will be covered in this linear algebra portion. Then there will be a calculus में functions, limit and continuity, differentiability, local maxima and minima, Taylor series, test for convergence or divergence. Then there are definite and indefinite integrals, application of definite integral to obtain the area and a volume, and a partial and a total derivatives. Actually the calculus plays a very important role in any engineering problems, like the find out the global maximum and a minima, or if we'll talk about the other civil engineering portion, there will be a very much importance for that calculus exam. And there will be then next is the differential equations. तो differential equations में जो है वो linear and non linear first order ODE, ठीक है, then higher degree ODE with constant coefficient, Cauchy's and Euler equations, then a Laplace transform and its application. So all these will be covered in this exam. Okay. Then being an environmental engineer, we should very very clear about the hypothesis testing or the correlations. So probability and statistics portion will be very good for that. So that is the descriptive statistics, measurement and a central tendency, how the results will be dispersed in a section, or the most of the result will be come in a central portion. And then the dispersion, skewness and a kurtosis, then a probability distribution, correlation, single and a multiple regression models, hypothesis testing, t-test, chi-square test, experimental design analysis and ANOVA variance. So actually जो मैथमेटिक्स है वो ऑलरेडी गेट के बहुत सारे एग्जाम्स में इंक्लूडेड था, गेट के बहुत सारे पोर्शंस में पहले से इंक्लूडेड, लाइक द सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस. सो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी के कुछ पोर्शंस तो ऑलरेडी उसमें कवर्ड ही हैं. आप लोग जो है मतलब देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. But the hypothesis testing, I will help you guys to know the t-test, f-test, chi-square test and experimental designing, ANOVA. ठीक है, all these will be covered by me, but these are the like the previous year same that has been asked in a previous exams of other streams of GATE exam. ठीक है, but the main core environmental engineering is here. So द सेकेंड सेक्शन जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, वो ये है कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स. जो ये पोर्शन है इसमें क्या है कि कोवालेंट एंड आयोनिक बॉन्डिंग, देन द केमिकल इक्वेशंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिविटी, देन अ स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, देन द रेडियोएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, देन अ केमिकल इक्विलिब्रिया, देन थर्मोडाइनमिक्स एंड अ काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये इतना जो है वो फंडामेंटल में कवर रहेगा. एक्चुअली में क्या है कि जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है या इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, इसको अगर हमको पूरा बेहतर तरीके से समझना है, सो वी शुड वेरी गुड इन अ केमिस्ट्री फॉर दैट. लाइक इफ विल टॉक अबाउट द वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देन वी शुड वेरी good about the chemistry of water engineering. So like if there will be a sudden change in a pH, then that will cause some problems. ठीक है, तो pH के changes किस तरीके से होंगे, how the things will be different, like the bonding किस तरीके से होगी different elements में. So इस सब को समझने के लिए हमको जो है केमिस्ट्री बेहतर तरीके से इसकी आनी चाहिए. Then there will be a principle of water chemistry. So water quality parameters and their measurements. So what are the different water quality parameters, like the physical and chemical water quality parameters, how the chemical water quality parameters associated with the different amounts of hydrogen, phosphorus and SCO3 minus CO3 minus, किस तरीके से आपको रहेगा. ठीक है, and then acid base equilibria, buffer
solution, carbonate system, solubility of gases in a water, then complexion, precipitation, redox reaction, then the inorganic and organic contaminants in a water and their speciation. ठीक है, all these will be covered. ठीक है, देन देयर विल बी नेक्स्ट द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री. एक्चुअली द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो एक पोर्सन में नहीं है, देयर विल बी अ मोर नंबर ऑफ पोर्सन लाइक द सिविल, लाइक द वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देन एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो इन सब को मिला करके बनता है. सो बेसिकली जो केमिस्ट्री है वो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड वाटर केमिस्ट्री दो पार्ट्स में बेसिकली हमारा डिवाइड रहती है इसमें. सो वाटर केमिस्ट्री में व्हाट इज द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट से, तो किस तरीके से उसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को राइज करता है, किस तरीके से टेम्परेचर राइज में वो इफेक्ट करता है, या जब रेनफॉल होती है तो जो रेनफॉल होता है एसिड रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओजोन लेयर डिप्लीशंस कैसे होता है, how the air pollutants are dispersing in the atmosphere, how the photochemical smog. So all these will be associated in the basics is the atmospheric chemistry. So smog and particulate matter, then the chemistry of stratosphere. So how the ozone breakdown will be there in a stratosphere with the nearly 243 नैनोमीटर से कम की जो वेवलेंथ रहेगी उतनी एनर्जी पर किस तरीके से ओजोन का डिप्लीशन होगा इन स्ट्रेटोस्फीयर. सो ऑल दिस विल बी गिवन इन द सिस्टम. सो देन द नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. सो जो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है उसमें प्रोकैरियोटिक एक्चुअली जो सेल्स के बारे में हमको रिक्वायरमेंट रहेगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा. देन क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, देन प्लांट माइक्रोब, सॉयल माइक्रोब्स, कौन कौन से डिफरेंट माइक्रोब्स हैं, लाइक द प्लांट माइक्रोब आते हैं जो कि प्लांट्स पे रहते हैं. ठीक है, जैसे लाइकेन वगैरह रहेगा, एंड सॉयल माइक्रोब में राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह रहता है. ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लाइक द एल्गी एंड फंजाई का जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं देन द हमारा लाइकेन बनाता है. देन राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमको हेल्प करता है. सो ऑल दिस विल बी given by the environmental microbiology. So role of microorganism in a waste water treatment. जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रहता है उसमें किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं. ठीक है, या जब हमारा फूड जो है किसी भी एरोबिक सिस्टम में फूड आता है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से बैक्टीरिया उस फूड को कंज्यूम करता है, बीओडी को कंज्यूम करता है, तो किस तरीके से बैक्टीरिया इंक्रीज करता है, लाइक इन अ लैग फेज, देन अ लॉग ग्रोथ फेज, देन स्टेशनरी फेज, देन एंडोबोलिक कैटाबोलिज्म फेज. सो इस तरीके का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, और पूरा का पूरा ये इन्वायरमेंटल जो गेट का सिलेबस है इसको कवर करेंगे. ठीक है, तो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देन बायो रेमेडिएशन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल. जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वगैरह है लाइक द नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल. ठीक है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर में जो है हमारा जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को किस तरीके से फिक्सेशन होता है, या नाइट्रोजन जो है जो फ्री नाइट्रोजन है उसको कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. ठीक है, लाइक द जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं वो जो नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर नाइट्रेट को फिर नाइट्रेट में बदलते हैं. ठीक है, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं. लाइक द नाइट्रोजन जो है तुम्हारा जब नाइट्राइट में चेंज होता है विच मीन्स इन नाइट्रोसोनोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में रहता है. ठीक है, और जब नाइट्राइट है नाइट्रेट में बदलता है देन द नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया रहता है, फिर नाइट्रेट जो फिर डीनाइट्रिफिकेशन जो होगा इन द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में रहता है. सो ये जो सारे बैक्टीरिया ये किस तरीके से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में वर्क करते हैं. देन द बायो रेमेडिएशन कैसे होता है, यानी कि किसी भी जगह अगर प्लांट्स है या सॉयल है उसमें अगर वेस्ट मटेरियल है उसका रेमेडिएशन करके उसको इन सिटू लोकेशन पे ही बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, वो सारा जो है बायो रेमेडिएशंस में आता है. तो इसका पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही माइक्रोबायोलॉजी में रहता है. ठीक है, फिर सेल केमिस्ट्री, जो सेल है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का कैसे होगा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, देन लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, देन बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बायोमोलिक्यूल्स, देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, structure and function of a cytoplasmic membrane, cell wall and outer membrane, glycolysis. ठीक है, एंड क्रोमोसोम, इंडोस्पोर. ठीक है, और आपका ये स्टोरेज प्रोडक्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सो ये सारा जो है इसमें आता है तुम्हारा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में.
देन उसके बाद ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली में किसी भी सिस्टम में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई तो उस ग्रोथ को ऐसा नहीं कि हम लोग इन्फानाइट ग्रोथ करते रहेंगे, उसको जो है उस ग्रोथ को हमको कंट्रोल भी करना है। लाइक कि अगर हमारा इस तरीके से कुछ मान लीजिए अगर कुछ ग्रोथ अगर हो रहा है, सॉरी, अगर हमारा मान लीजिए कुछ कुछ भी ग्रोथ हो रहा है सिस्टम में, लाइक अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो उस ग्रोथ होने के बाद में उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। सो कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स वगैरह रहेंगे, लाइक कि अगर हमारा सिस्टम में आता है तो एंडोबोलिस कैटाबोलिज्म फेज में जाता है, जहाँ पे जो है DN/dt जो है, यानी कि जो नंबर इंक्रीज होने का रेट है वो डिक्रीज होने के रेट से कम हो जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया हमारे मरने लगते हैं, नेट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो उस तरीके से ग्रोथ हो जाता है। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन एंड अ ग्रोथ, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एंड अ डबलिंग टाइम के कितना रहेगा, देन टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया क्या क्या है, बैच एंड कंटिन्यूस कल्चर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। सो ये इतने बड़े बड़े नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी प्रॉब्लम जो है मैं आई विल कवर बाई मी, इट विल कवर बाई मी, सो नो प्रॉब्लम इज देयर। सो ऑल दीज द ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, then the microbial metabolism, the anabolism and catabolism, glycolysis, TCA cycle, electron transport chain, fermentation, anaerobic respiration and energy balance. Then fourth will be the in the system the microbiology and health. So pathogens and modes of transmission, then the indicator, microorganism, quantification of coliform using MPN and a membrane filter techniques. ये जो है पहले से सिविल इंजीनियरिंग पोर्शंस में था, तो इसके क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे, ठीक है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देन तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन 4 है, वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक। ऑलरेडी ये जो पहले जो गेट का एग्ज़ाम होता था सिविल इंजीनियरिंग में, उस पोर्शन में ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक कि ग्लोबल वाटर रिसोर्स जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, देन द डिस्ट्रीब्यूशन उसका वाटर का किस तरीके से है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आपका सी में है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा फ्री वाटर है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉयल मॉइस्चर में है, कितना हमारा आइसबर्ग्स या आइस के फॉर्म में है, ठीक है। सो सारा इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन, देन वाटर का क्वालिटी जो है, देन थ्रेट्स क्या है वाटर के रिसोर्सेज को, देन सरफेस वाटर रिसोर्स, जो सरफेस वाटर रिसोर्स है वो किस तरीके से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, वाटर बैलेंस कैसे होता है, लाइक कि जब हमारा रेनफॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सन, जो हमारा वाटर जो है किसी भी वाटर सरफेस के ऊपर से, जो वाटर सरफेस के ऊपर से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने के बाद में वह ऊपर जाता है, जिस तरीके से हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, तो उस पॉइंट के बाद में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन होने की वजह से वहाँ पे रेनफॉल होता है, रेनफॉल होने के बाद में वह रेनफॉल जो है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जो है सरफेस पे आती है, देन बहुत सारा उसका पार्ट जो है ऑलरेडी जो है इंटरसेप्ट हो जाता है, देन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है ग्राउंड वाटर में जाता है, जिसे इन्फिल्ट्रेशन या परकोलेशन बोलते हैं, वो वाटर जो है अंडरग्राउंड फ्लो के थ्रू जो है हमारा वापस सी में जाता है, या फिर जो सरफेस के ऊपर जाएगा तो सरफेस रन ऑफ होता हुआ जाएगा, या जब हमारा वापस जो वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन होता है बाय द प्लांट्स एंड इवेपोरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लोकेशन वेयर देयर विल बी अ प्लांट, सो कंबाइंडली ऑल दिस विल बी कॉल्ड द इवेपो ट्रांसपीरेशन। जब ये सब जाता है तो ये सारे के सारे विल बी कवर्ड बाय में। देन द फ्लो हाइड्रोग्राफ, ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग के हाइड्रोलॉजी पोर्शन में फ्लो हाइड्रोग्राफ्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। लाइक द यूनिट हाइड्रोग्राफ, स्टेट डिस्चार्ज रिलेशनशिप क्या है, रिजर्वायर कैपेसिटी क्या है, रिजर्वायर एंड चैनल राउटिंग किस तरीके से किया जाता है, देन सरफेस रन ऑफ मॉडल, सरफेस वाटर मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सो इसका सारा का सारा हमारा पहले आ चुका है पेपर्स में क्वेश्चन, तो इसको हम लोग इसमें करवाएंगे। देन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो जियोलॉजिक फॉर्मेशंस किस तरीके से रहेंगे, एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूटार्ड, एक्यूफ्यूज रहेगा, ठीक है। एक्यूफर्स में किस तरीके से वडोज जोन एंड सैचुरेटेड जोन रहेगा, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर कौन कौन से हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, या कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं, ये स्पेसिफिक वेल टेस्ट वगैरह क्या है, डुपिट सोल्यूशन एंड थीम सोल्यूशंस क्या, ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड इन दिस पोर्सन। सो पोरोसिटी, परमेबिलिटी किस तरीके से ग्राउंड वाटर रिसोर्स के लिए इसको मेजर करते हैं, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे आता है इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स। तो इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स जो है इसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन सरफेस, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप नेटवर्क। एक्चुअली बेसिकली जो है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोर्शन में
जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा वही है। फुल मार्क्स जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के पोर्शन का ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो का पोर्शन है। लाइक इसमें ओपन चैनल फ्लो के पोर्शन में हाइड्रोलिक जंप, क्रिटिकल फ्लो के लिए जो हमारा फ्राउड नंबर क्या है, फ्राउड नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है, या फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है, V/√G/80, G/√A/T, ठीक है। तो ये जो है फ्राउड नंबर रहता है। फिर उसको किस तरीके से डिफरेंट में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोलिक जंप जो है उसकी क्या इक्वेशन है, लाइक द वाई, पहले जो है किसी भी एक डैम के पहले की हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ ऑफ वाटर क्या है, फिर उसके बाद में सुपर क्रिटिकल फ्लो जो में जाने के बाद में कितना जो है हाइड्रोलिक जंप आएगा, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या है कि जैसे y2/y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 1 प्लस √8f1²। तो इस तरीके से हम लोग इसको हाइड्रोलिक जंप वगैरह के निकालते हैं। रैपिडली एंड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, डिजाइन ऑफ लाइंड एंड अनलाइंड चैनल, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस में सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन में काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। सो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यही है, ठीक है। किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन एंड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक, ठीक है। तो कैसे किस तरीके से यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो वाटर डिस्पोज हम लोग करते हैं उसमें अगर उसमें फॉस्फेट या नाइट्रेट रहता है तो वो उसमें जा करके यूट्रोफिकेशन लेक में कर देगा, लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से रहेगा, रिवर पॉल्यूशन, ऑक्सीजन सैक कर्व किस तरीके से रहता है। देन वाटर एंड सीवेज क्वालिटी पैरामीटर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिविल इंजीनियरिंग पोर्शंस है पूरा का पूरा, पहले आ चुका है, लेकिन जो है ये भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग वाटर ट्रीटमेंट की पूरी सिस्टम है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्वालिटी पैरामीटर, सारा का सारा उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एफ्लुएंट, ठीक है। तो JDD का पूरा सिस्टम जो है वो कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। सो जो एयर पॉल्यूशन है उसमें जो है नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या हैं। देन एटमॉस्फेरिक सोर्सेज, सिंक, ट्रांसपोर्ट, केमिस्ट्री ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, फोटोकेमिकल स्मॉग, effect on health and environment, the air pollution system, gases and particulates, air quality standard, primary and secondary pollutants, criteria pollutants, and second is the ambient and some other standards. particulate pollutants जो रहेगा उसमें मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा, कंट्रोल उसको किस तरीके से करते हैं, ग्रेविटेशनल चैम्बर्स वगैरह रहता है। फिर हमारा आता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स को किस तरीके से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे या उसको कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। कंट्रोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स को किस तरीके से कंट्रोल करा जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, वेपर लिक्विड एंड वेपर सॉलिड इक्विलिब्रिया किस तरीके से, डिफ्यूजन एंड इंटरफेसियल मास ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हैं। देन ऑटोमोटिव एमिशन कंट्रोल रहेगा। देन फ्यूल क्वालिटी, देन डीजल पार्टिकुलेट फाइबर्स फिल्टर्स, देन कैटालिटिक कन्वर्टर को किस तरीके से हम लोग व्हीकल्स में इंस्टॉल करते हैं, उसका क्या यूज़ है, किस तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर जो है हमारे जो एग्जॉस्ट मैकेनिज्म होगा उसको गुड करता है ताकि वो आगे आने वाले फर्दर जो हमारा एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में एटमॉस्फेरिक एयर क्वालिटी को डिक्रीज करता है, उसको जो है किस तरीके से मैनेज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। सो देन द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है पॉइंट सोर्सेज क्या है, किसी एक लोकेशन के ऊपर जाकर हमारा एयर क्वालिटी जो है वो गड़बड़ है या किसी एक लोकेशन के ऊपर अगर हमारा किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हमारा जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है एयर पॉल्यूटेंट्स को, देन पॉइंट किसी एक लोकेशन पूरे लाइन में किसी एक जगह पे कर रहा है। देन द लाइन सोर्सेज एंड एरिया सोर्सेज में किसी एक कम्युनिटी से अगर कोई भी हमारा एयर पॉल्यूटेंट निकल रहा है, लाइक अगर कोरोना वायरस के टाइम पे इटली में या फिर चाइना के कुछ लोकेशंस पे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन उस लोकेशंस में काफ़ी हाई थी, ठीक है। तो उसे जो है वो एरिया सोर्स बोला जाएगा, ठीक है। फिर जो है हमारा आता है इन्फ्लुएंस ऑफ मेट्रियोलॉजी, विंडरोज डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, स्टेबिलिटी, मिक्सिंग हाइट, डिस्पर्जन मॉडलिंग। विंडरोज डायग्राम जो है वो किस तरीके से, जैसे हमारा एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, तो 90 किसी एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एवरेज में लाइक द 10 ईयर 20 ईयर्स 30 ईयर्स में किस तरीके से हमारा एयर पॉल्यूटेंट में डिस्पर्जन होगा, यानी कि
जो हमारा विंड की क्या डायरेक्शन है उसको देखते हुए एक विंड रोज डायग्राम बनाया जाता है। इस विंड रोज डायग्राम से ही आइडिया लगता है कि मोर अमाउंट ऑफ एयर किस डायरेक्शन में, विंड किस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको अपनी कॉलोनीज वगैरह को सेट करना है किसी भी एग्जॉस्ट सोर्स के, ठीक है। अब वो मिक्सिंग हाइट कितनी होगी, डिस्पर्जन मॉडलिंग किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से डिस्पर्जन होगा, अगर हमारा कोई पॉल्यूटेंट जो है किसी जगह पे किसी जगह पे एग्जॉस्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टेक से अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो वो कितनी दूर जा कर के उसका डिस्पर्जन होगा, या कितनी दूर जाने के बाद में वो इस कॉन्सेंट्रेशन में आएगा कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो उसके लिए हम लोग ये डिस्पर्जन मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, स्टैंडर्ड्स इंडिया में क्या है, BIS स्टैंडर्ड्स क्या है। BIS स्टैंडर्ड जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द जोन्स के हिसाब से डिपेंड करता है, और डे टाइम एंड नाइट टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। लाइक जो डे टाइम है वो मॉर्निंग में 6 AM से नाइट में 10 PM तक है, एंड नाइट टाइम जो है नाइट में 10 PM से मॉर्निंग में 6 AM के बीच में है। उसका मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं और कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में जो है हमारा जो सेक्शन 7 सेक्शन आता है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देन वेस्ट हायरार्की, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। देन अब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, जनरेशन कैसे होता है, फिर कलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से है, फिर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जाएगा। देन प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, बायोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, थर्मल ट्रीटमेंट, यानी कि थर्मल ट्रीटमेंट में इंसिनरेशन वगैरह करके हम लोग उसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा फिर हैजार्डस वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, करेक्टरिस्टिक्स, जनरेशन वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ई वेस्ट हो गया, सोर्सेज, जनरेशन। सो ये सब जो है हमारा करंट सिनेरियो में इसका बहुत यूज़ है, सो वो है। देन इसके बाद में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस आ जाते हैं, ठीक है, जिसका जो है ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इशूज है, ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन का ग्लोबल इफेक्ट क्या हो रहा है, लाइक कि उसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो काफ़ी राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक कि हमारा जो एक लॉन्ग टर्म में लाइक 100 ईयर्स में जो है किसी एक लोकेशंस पे जो टेम्परेचर था या राइस था वो काफ़ी ज़्यादा होकर के, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो पहले बना रखी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अर्बन हीट आइसलैंड, एसिड रेन, ओजोन होल, तो ये कुछ पोर्शन इसमें का ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसमें इस पोर्शन को काफ़ी कुछ कवर किया है, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के पोर्शंस को काफ़ी कुछ कवर किया है। सो जो बचा हुआ है दैट आई विल कवर, ठीक है। तो इनिशियली ये पोर्शंस काफ़ी कवर, एनर्जी कंजम्पशन किस तरीके से होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से वो हार्म होगी। All these most of the portions have been previously covered in my previous lectures. So section 8 most of the system में कवर है, कुछ जो पोर्शन नहीं है उसको हम लोग स्पेसिफिकली कवर कर लेंगे। सो जो सेक्शन 9 है हमारा, जैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस तरीके से EMS वर्क करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ISO 14000 सीरीज क्या है, देन इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स क्या हैं, देन जनरल ऑडिट किस तरीके से करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या गाइडलाइंस है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो 2006 का क्या था, और जो ड्राफ्ट EIA 2020 में आ रहा है, ठीक है, इसका क्या सिस्टम है, किस तरीके से EIA के कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रेडिक्शंस वगैरह कैसे किया जाता है। देन हमारा लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA है। सो ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड बाय मी। देन फिर आता है इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी। सो कौन कौन से इन्वायरमेंटल लॉज हैं, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, EPA 1986 क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो डिफरेंट जो एक्ट्स हैं, NGT है, उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन रूल 2000 का है, ठीक है। उसके बाद में हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, ठीक है। तो एंड देन नेक्स्ट हमारा आता है लाइक द बायोकेमिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है। तो उसका सारा सिस्टम इसमें कवर किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब। देन फिर हमारा है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। एनर्जी इन्वायरमेंट में एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है,
की इश्यूज फॉर एनर्जी मैनेजमेंट किस तरीके से कवर किया जाएगा। देन द नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, लाइक इफ विल टॉक अबाउट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, देन हमारा बायोमास एंड कोजनरेशन, ये किस तरीके से किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी किस तरीके से जनरेशन होगा, हमारा आईएनडीसी के रूल्स क्या हैं, आईएनडीसी के नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, वो किस तरीके से रहता है, तो उसका सारा कंसेप्ट जो है इस सेक्शन में कवर किया जाएगा। लाइक इंडिया में अगर हमको कोई रिन्यूएबल एनर्जी में कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो शायद हम लोग के पास इरेडा एक पीएसयू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो लोन एंड फंड्स प्रोवाइड कर देती है, लाइक वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोन प्रोवाइड करता है। सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस तरीके से कवर करेंगे। देन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या है, लाइक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है, लाइक द मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, ठीक है, उसको कवर करेंगे। देन द कंसेप्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि किसी भी हमारा जो जैव संसाधन है उसका दोहन इस प्रकार किया जाए ताकि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी यूज़फुल हो सके या उन जनरेशन तक भी अवेलेबल रह सके। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसमें क्या क्या हर्डल्स हैं सस्टेनेबिलिटी में, थर्ड वर्ड में, देन वाटर फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, ये किस तरीके से कवर किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है हमारा पोर्शन था जो बेसिकली हमारा प्रपोज्ड होना चाहिए गेट 2021 के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस विल बी सेम, सो ये सारे के सारे सेक्शंस सेम होंगे ऑनलाइन एवरेज, ठीक है। कुछ और हो सकता है कि गेट अभी जो इसका स्पेसिफिक सिलेबस दे तो कुछ और चेंजेस करे, सो इफ देयर विल बी सम अदर चेंजेस देन आई विल डेफिनेटली इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स इन दैट। सो एज ऑफ नाउ यही सिलेबस रहेगा जो कि गेट 2021 में इन्वायरमेंटल साइंस या इंजीनियरिंग पोर्शन या स्ट्रीम के लिए फॉलो होना चाहिए। ये कुछ हमारे सोर्सेज से हमको ये मिला था, ठीक है। सो ये हम लाइक है। अब इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार होगा, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड प्रीवियसली कि गेट एग्ज़ाम में जो 15 मार्क्स हैं वो रिजर्व्ड हैं तो आपका एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड या इंग्लिश पोर्शन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में जो मेजर चंक होना चाहिए वो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इस सेक्शन में और वाटर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स पोर्शन में। एक्चुअली में वाटर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स जो पोर्शन है उससे और इस पोर्शन से ऑलरेडी गेट में सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी इन दोनों के पोर्शंस जो हैं वो पहले ही सिविल इंजीनियरिंग पोर्शंस में कवर्ड हैं, उसके क्वेश्चंस पहले से ही गेट में हैं। सो इस पोर्शन से थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रहेगा। सो ऑलमोस्ट ये दोनों मिला करके 25 से 26 मार्क्स को कवर करना चाहिए, जिसमें मेजर में हो सकता है 16 मार्क्स जो हमने इसको वेटेज दिया है, 16 मार्क्स का वेटेज हो सकता है 13 मार्क्स का हो जाए और ये मार्क्स जो है इंक्रीज होकर के 15 मार्क्स हो जाए। तो यहाँ पे मेजर पोर्शन रहेगा टेक्निकल में। उसके बाद में एयर पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 10 मार्क्स 20 मैंने वेटेज दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट मान के रखिए कि 15-16 मार्क्स का यहाँ से कवर होगा। जो ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। बेसिकली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इस सेक्शन से बेसिकली कवर होने चाहिए। देन फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के लिए हमारा मैथमेटिकल फाउंडेशन इससे, ठीक है। एंड कहीं कहीं पे हमारा एयर पॉल्यूशन से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं, लाइक द डिस्पर्जन मॉडलिंग वगैरह से। एंड नॉइस पॉल्यूशन के भी क्वेश्चंस काफ़ी 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में किस तरीके से हमको एल इक्विवेलेंट निकालना है या फिर जो और बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एल इक्विवेलेंट है, LFEPD है, ठीक है, उसको कवर किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद एक किस तरीके से एवरेज लिया जाएगा नॉइस का, ठीक है। वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो नॉइस पॉल्यूशन में है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी आए हैं सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शंस में जो गेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसमें कवर ऑलरेडी किया गया है और बाकी हम कवर करेंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग नॉइस पॉल्यूशन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा 15 to 20 मार्क्स के आसपास ये वेटेज देगा। ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज जो है 4 मार्क्स को मैंने वेटेज दिया है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी 6-7-8 मार्क्स का इसमें देंगे। ये दोनों मिला करके नियरली 10 मार्क्स यहाँ से कवर होने चाहिए, ठीक है। देन फिर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है।
तो इसका वेटेज भी थोड़ा सा कम ही रखना पड़ चाहिए, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसने बेसिकली उतना टेक्निकलिटी सिस्टम में नहीं है, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें हैं, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें जो है वो 6 से 8 मार्क्स का वेटेज यहाँ से देंगे। एंड देन फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री थोड़ा सा मेजर पोर्शन है, बहुत सारा जो है वाटर केमिस्ट्री यहाँ से आ जाती है, एयर केमिस्ट्री भी यहाँ पे आएगी। तो वाटर केमिस्ट्री में हमारा हार्डनेस के न्यूमेरिकल और क्लोरिनेशंस वगैरह के न्यूमेरिकल कुछ इस पोर्शन से और इस पोर्शन से कवर होंगे। काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं हार्डनेस वगैरह के, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। NAT यहाँ से आ सकते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला टाइप जो क्वेश्चन है NAT, ये इसमें से NAT के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक हमारा रहेगा। कंबाइंडली सारा मिला करके 15 मार्क्स का हमारा ये नॉन टेक्निकल यानी कि एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा। एंड 85 मार्क्स में ये रहेगा, तो 55 क्वेश्चंस हमारे ये टेक्निकल सेक्शंस में रहेंगे, जिसमें से हमारा 25 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के एंड 30 क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स के रहेंगे। इसमें जो 5 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल कंबाइंडली 100 मार्क्स का गेट का एग्ज़ाम होगा, जिसको हमको कवर करना है। सो हम लोगों का एम होना चाहिए कि ऑलमोस्ट इसमें हम लोग 85 to 90 मार्क्स जो है ऑलरेडी के कवर कर सकें। सो इस लेवल की हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, सो दैट आने वाला नेक्स्ट ईयर है उसमें जो है गेट एग्ज़ाम के थ्रू काफ़ी PSUs वगैरह रिक्रूटमेंट के लिए, या अगर हायर स्टडीज़ के थ्रू MTech वगैरह करना है इन्वायरमेंट में, तो हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए ये हमारा एक जैकपॉट है, सीधे स्टार्टिंग यहीं से कर सकते हैं। अभी क्या है कि जो गेट ने एक और चीज़ किया है कि जो 3rd ईयर में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में गेट 2021 में अपीयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपने आने वाले प्रेजेंट फ्यूचर को पहले से ही सिक्योर कर सकें। ड्यू टू कोरोना वायरस डिजीज़ वगैरह के COVID-19 वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से मे बी ये स्टेप इन लोगों ने लिया है। तो 3rd ईयर एंड 4th ईयर वो लोग अपीयर कर सकते हैं, और ड्रॉपर्स तो ऑलरेडी इसको अपीयर कर ही सकते हैं गेट 2021 के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है, हम लोगों ने गेट का सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कवर किया। अभी इसके बाद में हम लोग डिफरेंट जो सेक्शन वाइज जो है वो सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के पोर्शंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी जो है वो इन्वायरमेंटल ये ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के पोर्शंस को काफ़ी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशंस, ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के जो पोर्शंस हैं, ठीक है, उसमें लाइक हमारा ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या है, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन, रिमोट सेंसिंग वगैरह, उस सब को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। कुछ और पोर्शन हम लोग आगे कवर करेंगे, और वाटर रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स वगैरह में फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब पोर्शंस भी कवर किए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आगे आने वाले लेक्चर्स और आगे आने वाली जो प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और बाकी जो बेस्ट विशेस फॉर योर गेट एग्ज़ाम, वी प्रिपेयर लाइक द, अभी हम लोगों के पास पे नियरली अगर हम लोग देखें फरवरी तक, तो हम लोगों के पास में ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हैं अभी। सो उसके लिए काफ़ी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन तब तक की जा सकती है इस सब्जेक्ट्स के थ्रू। नया सब्जेक्ट है, सिलेबस नया है, कोर्स स्ट्रक्चर नया है, लेकिन अपॉर्चुनिटी और नीड जो है फ्यूचर में इसकी काफ़ी ज़्यादा है। सो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। मे बी PSUs वगैरह में रिक्रूटमेंट इसके थ्रू ईजिली हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को यह लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसको समझने के बाद में नेक्स्ट प्रीवियस जो लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड किए उनको देखें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग सक्सेसफुली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।